Hello everyone and good morning to all of you, and I hope everyone is catching up good on the subject as of now. Hello Harpal, Sunny, good morning to all of you. How are you doing? Catching up good? Shivam, Sajan, Sunny, Pradeep. Great. Well, that's good. Evanjan present. Well, active भी रहना है present के साथ साथ class में. It's not just present, it's active as well working, right? Morning Sanjay, Surya, Gopal, Pradeep, Vikas. Now, before we begin, it would be better if you all share the session and like the video, share the video जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग connect कर सकें. Yes, so good. पहले sharing, उसके बाद we are going to go for questions. Nagendra, Sanjay, morning. All great, Amit. That's great. Anand, all ready. Well, ready from my end too. बस थोड़ा सा time for all those who are still connecting, क्योंकि Telegram पे अभी update हुआ है. So let's wait for a minute more for the people who want to connect, and then we'll move forward. Devendu, good morning. Now those who are watching on any other platform या Facebook के किसी और page पे, the current live is on SSC Tube Facebook page. So the comments are open there. You can comment there and connect with me. Waiting for it. Okay. So आज के session में भी we have the same part, current affairs and CPU questions, right? So we'll begin with the current affairs, and then in the second half we'll move towards the part of CPU, right? Vishal, Amit, Vikas, good morning. And now the good morning has a good question for you. When is World Heritage Day celebrated annually, and 2020 का theme क्या था? So days, dates and themes इसका question usually we witness one or two questions. So World Heritage Day कब होता है and इस बार का theme क्या था? What was the theme of World Heritage Day and when is World Heritage Day observed? Smart Sumit, Alok Pandey, Suryakant, Hemant. Okay, so we have a few answers over here. Well, the right answer of this question for the day is April 18. 18 अप्रैल को होता है World Heritage Day. And as for 2020 theme, इस बार का theme था shared culture, shared heritage and shared responsibility. और ये theme रखा गया था अभी करंट कोरोना वायरस के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए. तो करंट कोरोना वायरस का जो थीम चल रहा है या जो भी सीन चल रहा है, इसमें एवरीथिंग इज शेयर्ड, यू नो, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड और द प्रॉब्लम्स आर शेयर्ड. सो उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हेरिटेज का थीम भी यही रखा गया था, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेट 18th of April, 18 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे. Next question. Which command of Indian Navy has developed air evacuation pod for COVID-19 patients? भारतीय नौसेना ने किस कमांड ने COVID-19 रोगियों के लिए वायु निकास फली विकसित की है? So
एयर इवैक्यूएशन पॉड बनाया है नेवी ने, इंडियन नेवी ने इवैक्यूएशन पॉड बनाया है। सो कौन सा कमांड है इंडियन नेवी का जिसने ये एयर इवैक्यूएशन पॉड बनाया है? एयर इवैक्यूएशन पॉड का बेसिक आइडिया क्या होता है? एयर इवैक्यूएशन पॉड यानी वाया एयर जो कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट करना उस जगह से, एंड दिस पॉड विच हैज बीन क्रिएटेड, इसको डिसइंफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है। जो इवैक्यूएशन पॉड इंपोर्ट होते हैं उससे काफी सस्ता है, दैट इज इट इज कंपैरेटिवली वेरी चीपर। सो ये इवैक्यूएशन पॉड जो इंडियन नेवी ने बनाया है, ये कौन सी कमांड ने बनाया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड द आंसर ऑफ दिस इज सदर्न कमांड, ऑप्शन ए। इंडियन नेवी की सदर्न कमांड ने ये एयर इवैक्यूएशन पॉड क्रिएट किया है, विच इज कंपैरेटिवली चीपर। ये 50,000 में बन गया और इंपोर्ट करते हैं तो 50 लाख लगते हैं। सो इट इज कंपैरेटिवली चीपर, प्लस इट डज नॉट रिक्वायर द डिसइंफेक्शन प्रोसेस अगेन एंड अगेन। इसे बार बार डिसइंफेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है आफ्टर दे कैरी पीपल देयर। Okay, so moving forward, the third question we have is, okay, so Mummy, Vikas, okay, there were a few answers over here. Coming to the third question, which Indian organization has developed automatic mist-based sanitizers dispensing unit and UV sanitization box and handheld UV device recently? हाल ही में किस भारतीय संगठन ने ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजिंग डिस्पेंसिंग यूनिट एंड यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस विकसित किया है? इसके बारे में कल एक पोस्ट किया भी था, सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। So राहुल, भानु, वीरेंद्र, राहुल कुमार ठाकुर, बिंदास, हितेश, हितेश इट इज कम्प्लीटली ऑन द इंस्टीट्यूट कि वो कहाँ पे लाइव करना चाहते हैं, ऑल्दो आई प्रेफर माई सेल्फ एज यूट्यूब, बट स्टिल इट्स डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट बैंडविड्थ कि लाइव हो पाएगा या नहीं, एंड इट डिपेंड्स ऑन देम। सो दिव्येंदु, धर्मेश, हिमांशी, आनंद, ओके, so that is right. DRDO, G Satish Reddy, the chairman. Now DRDO ने ये ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट बनाया है और साथ ही साथ यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स बनाया है, हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस। ये जो हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस है इसका क्या है? ये जो हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस है ये आता है अपने घर की कोई भी सामान है जिसे डिसइंफेक्ट करना है, इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन्स और योर वॉलेट्स, योर सोफाज, कर्टन्स, कुछ भी डिसइंफेक्ट करना है तो ये हैंड हेल्ड डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, एंड इससे चीज़ें डिसइंफेक्ट की जा सकती है इवन एट होम। और ये मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट है, ये है कि पाथवेज वगैरह जैसे कई मॉल्स वगैरह में इंस्टॉल किया जा सकता है इसे कि सैनिटाइज हो जाए इंसान आने से पहले। These are the two things invented by DRDO recently, very important. Which Indian movie producer and distributor company has done first of its kind all share merger with Bollywood's STX Entertainment? किस भारतीय फिल्म निर्माता और वितरक कंपनी ने हॉलीवुड के STX एंटरटेनमेंट के साथ अपनी तरह का पहला शेयर विलय किया है? यस, DRDO हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। हेलो तबरेज एंड रघुनाथ प्रजापति। सो क्वेश्चन का आंसर, कौन सी
इंडियन मूवी प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जिसने हॉलीवुड के STX एंटरटेनमेंट के साथ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल शेयर मर्जर किया है? बंगाली प्रमोद राज। Okay, so we have a few answers over here. Well, the right answer comes for Eros International, option B. Eros International ने ये merger किया है STX Entertainment के साथ. Which Indian multinational motor company has acquired the 122-year-old iconic British company Norton Motorcycle UK Limited for 153 crores? किस भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर कंपनी ने 153 करोड़ रुपए में 122 वर्षीय प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल्स यूके लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? चमन, जानवी, राहुल, शेट्टी, विष्णु, ओके, वर्षा, आनंद, Taj, Suraj. Okay, so we have a few answers. Nikhil, yes, it is Eros. Okay, Anshu. Okay, we have a lot of answers going with TVS Motors. That is right. TVS Motors ने Norton Motorcycle UK Limited को 153 approximately close to 153 करोड़ में acquire कर लिया है. Next question that we have is the 44th session of UNESCO World Heritage Committee 2020 was scheduled at Fuzhou has been postponed. Where is Fuzhou city? UNESCO के विश्व धरोहर समिति 2020 का 44th सूत्र फुजौ में निर्धारित किया गया था. फुजौ शहर कहाँ है? यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स इसके अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, तो अगर हेडक्वार्टर्स पूछते हैं यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज इन पेरिस, फ्रांस. एंड नाउ वी हैव द क्वेश्चन फॉर फुजौ सिटी. प्रशांत, अजय, प्रदीप, निखिल, मानशु, कोरोना का ओरिजिनेटर. ओके, धर्मेश, प्रवीण, वरिया, सरताज, स्मार्ट, सुमित, दीपिका, आनंद. ओके, so we have a few answers for option A, B and D. South Korea, Japan, North Korea and some with option C, China. Well, the right answer is actually the least opted option, that is C, China. Fuzhou city is in China. और यहाँ पे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी 2020 का 44th सेशन ऑर्गेनाइज होने वाला था, बट इट हैज बीन पोस्टपोन्ड amid the current crisis or you can say the pandemic going on. Amit, fifth question का आंसर था TVS Motors, option A. Now, which Indian ministry has formulated color codes for lockdown 2.0? किस भारतीय मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए रंग कोड तैयार किए हैं? और कौन से कोड है? रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन. 3 तरह के जोन्स बनाए गए हैं. कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये 3 कलर कोड से जोन्स अलाइन करे हैं, विच इज रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन? राहुल, रोशन, देवेंद्र. ओके, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉकडाउन 2.0 के टाइम पे कलर कोड्स यूज करने का प्रपोजल रखा है? यस, चाइना ने भी कुछ सीधे नाम रख रखे हैं. ठाकुर, सूरज, सरफराज, अमित, शुभम, शिवम, हिमांशु, दिव्या, नितिन, वरिया, कृष्ण, अब्दुल, राहुल, Ram. Okay, so we have all going with option D, Janvi and all. Okay, so all going with option D and that is right.
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये 3 कलर कोड जोन्स बनाए हैं। रेड जोन बीइंग द हॉटस्पॉट जोन, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल केयर सिचुएशन में है, यानी उसमें मूवमेंट सबसे स्ट्रिक्ट होगा। इसके बाद ऑरेंज जोन जो लेस डेंजरस है कंपैरेटिवली। ना हॉटस्पॉट जोन्स कौन से हैं? जिनमें 15 से ज्यादा केस, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 15 से ज्यादा केस हैं तो वो हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है एंड उसे रेड जोन में रखा है। एंड ग्रीन जोन जहाँ पे अभी तक एक भी केस नहीं आया, हार्डली अ केस इज देयर, तो वो ग्रीन जोन में आता है। सेफर जोन जहाँ पे काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओपन कर दी गई हैं, ठीक है, कंप्लीटली बैन नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Now, which is the first Indian state that has carried out the rapid testing for COVID-19? या वह पहला भारतीय राज्य कौन सा है जिसने COVID-19 के लिए तेजी से परीक्षण शुरू किया है? Shivam, the class is on weekdays, that is Monday to Saturday at 11:30. फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट हैज कैरिड आउट द रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19, में पहला भारतीय राज्य कौन सा है जिसने कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण शुरू किया है? आनंद, जयप्रकाश, नीरज, प्रदीप, मोना, अभिजीत, ओम, Ayushi, Manvar. Okay, so we have a few answers coming up with Rajasthan as the major one. That is right. Rajasthan state is the first state जिसने rapid testing शुरू करी. Now first state जिसने lockdown लगाया था वो भी राजस्थान स्टेट था, एंड फर्स्ट स्टेट जिसने रैपिड टेस्टिंग शुरू करी है वो भी राजस्थान है। फर्स्ट स्टेट टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 एज ऑफ नाउ इज गोवा। गोवा के अंदर करंटली देयर आर 0 केसेस। तो पहला स्टेट जिसमें 0 केस रजिस्टर्ड है इन द लास्ट फ्यू डेज, दैट इज गोवा। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजस्थान। एंड दिल्ली सून लगाने वाला है ये रैपिड टेस्टिंग, दिल्ली भी इंप्लीमेंट करने वाला है जल्दी। थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020, और ये कब होता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय क्या था और ये कब होता है? स्मार्ट सुमित, नहीं, वहां पे नहीं हूं। आई एम नॉट करंटली रनिंग लाइव ऑन अन अकेडमी फॉर नाउ। वहां पे सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। इस कोरोना का भी गोवा प्लान कैंसिल हो गया है। 17 इज हीमोफीलिया डे। ओके ओके, सो वी हैव आंसर्स। 1 December, ऑप्शन डी। Okay, so abhi option D coming up for the theme. The theme is get plus involved. Option A, World Hemophilia Day का जो थीम था 2020 का वो था get involved, एंड डे जिस दिन ये मनाया जाता है वो है 17 April। 17 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, एंड थीम इस बार get involved था। Who is the author of the book Shuttling to the Top, the story of PV Sindhu? Shuttling to the Top, the story of PV Sindhu पुस्तक के लेखक कौन हैं? So Shuttling to the Top, the story of PV Sindhu पुस्तक के लेखक कौन हैं, या who is the author of the book Shuttling to the Top, a story of PV Sindhu? हाँ जी, 17 अप्रैल। अमित बिल्कुल सही। सरफराज, रवि, ओके। आंसर टू द बुक, सिंपल क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर्स का। वीवी सिंधु की लाइफ के ऊपर बुक लिखी है शटलिंग टू द टॉप। ये किसने लिखी है? ठाकुर, शुभम, हिमांशु, सूरज।
Okay, so don't know. There are certain answers going with don't know and certain with option B, Om Swami, or option C, Arunavar Singh. The right answer is option D, Krishna Swami V. Krishna Swami V is the author of this book. Now, books and authors की जो list है उसके अंदर ये भी ऐड कर देना है. Shuttling to the top, the story of PV Sindhu एक autobiography नहीं है. कृष्ण स्वामी V ने ये book लिखी है. A new green viper pit has been found in the Indian state of which and has been named Salazar's pit viper after Salazar Slytherin. भारतीय राज्य कौन से भारतीय राज्य में एक नया ग्रीन वाइपर पिट पाया गया है और इसे सालाजार स्लिदरिन के नाम पे सालाजार के पिट वाइपर नाम दिया गया है. सालाजार स्लिदरिन सभी ने सुना होगा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू नो दिस कि सालाजार स्लिदरिन कौन है. कहां से लिया है ये कैरेक्टर? Salazar Slytherin is the famous character of which series? Harry Potter series. Okay, Shivam. कहाँ पे है ये? कौन से स्टेट में मिला? इट्स अ ग्रीन स्नेक, बेसिकली ग्रीन कलर का स्नेक है विद रेड लाइनिंग्स नियर आई. अहीर, सुमित, सरफराज, पंजल, राम Narayan, Amit. Okay, so we have answers of option A. No problem, Varya, Divyendu, Neeraj. Okay, so the answer of this is option A. अरुणाचल प्रदेश में ये ग्रीन वाइपर पिट पाया गया है. It's completely green and a bit of red linings are there on it. कहाँ पे पाया गया? अरुणाचल में पक्का टाइगर रिजर्व है, PAKKA, पक्का टाइगर रिजर्व. यहाँ पे ये ग्रीन वाइपर पिट पाया गया. सो अगर क्वेश्चन आता है कि पक्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये अरुणाचल में है, तो ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी भी है. एंड यू मस्ट नो कि ये कहाँ पर है. अरुणाचल में पक्का टाइगर रिजर्व है, वहां पे ये पाया गया है. सालाजार स्लिदरिन के नाम पे, विच इज फ्रॉम हैरी पॉटर सीरीज, उनके नाम पे ये रखा गया है. Now, which company has launched a new virtual braille keyboard named TalkBack? किस कंपनी ने TalkBack and the Mysterious Chamber? Well, Salazar Slytherin was the one who, जिनके नाम पे स्लिदरिन हाउस था हैरी पॉटर सीरीज का. Which company has launched a new virtual braille keyboard named TalkBack? या किस कंपनी ने TalkBack नाम का एक नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? शुभम, सुधीर, सूरज, अंशु, Raj, Deepak. Okay, Krishna. We have a few answers over here. Devyendu, Om. Going with Google, that is right. Google ने ये वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है. एंड्रॉइड 5.2 एंड उससे ऊपर के एंड्रॉइड्स में अवेलेबल है. एक्सेसिबिलिटीज के थ्रू ये एक्टिवेट किया जा सकता है. ब्रेल कीबोर्ड बाय द नेम ऑफ टॉकबैक. सो टॉकबैक क्या है? ब्रेल कीबोर्ड है. किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है. कौन से एंड्रॉइड के लिए है? तो एंड्रॉइड 5.2 एंड अबव के लिए है. And now we come to the second half of the session, that is CPO questions. Before that, for those who are the new viewers, for latest updates you can join me or follow me on Instagram or Telegram. Basically Instagram पे ज़्यादा updates मिलेंगे comparatively, but still. Coming to CPO questions now. Static part शुरू करते हैं and I'm expecting कि जो लोग यहाँ पे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा tough नहीं होगा. Rocks are formed from the cooling of magma are called what? Magma से ठंडा होने के बाद बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? Yesterday's World Earth Day. Well, सूर्य, थोड़ा ब्रेक तो हमारा भी बनता है. Yogesh, my name is Ashima. Rocks that are formed by cooling of magma are called what?
या मैग्मा के ठंडा होने के बाद बनने वाले पत्थरों या चट्टानों को क्या कहा जाता है? कौन से रॉक्स होते हैं? पायल, योगेश, दीक्षा, देवेश, रंजीत, अजय। इग्नियस रॉक्स ऑप्शन सी। बाकी के रॉक्स कैसे बनते हैं? वेल द आंसर ऑफ दिस इज इग्नियस रॉक्स, ऑल ऑफ यू आर राइट। इग्नियस रॉक्स जो है वो मैग्मा की कूलिंग से बनते हैं। बाकी के रॉक्स जो है, रॉक सॉल्ट्स जो है, ये बेसिकली जो ब्लैक सॉल्ट जहां से निकलता है दैट इज द रॉक सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के सेडिमेंटेशन से। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं? जो प्रेशराइज होते हैं, यानी रॉक्स बने हुए हैं वो एक्सेसिव हीट या एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर के गो थ्रू होके बनते हैं, दोज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ये बनते हैं सी बेड पे, जब सेडिमेंट्स यानी सेटल डाउन होती हैं चीजें एंड फिर वो हार्ड होती जाती है, तो ये सी बेड पे यूजुअली बनते हैं। दीज आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। इनमें लेयर्स साफ साफ दिखती है। Prem, no problem. You can join us on the static part now. And Yogesh, I do not give out my WhatsApp numbers. Now, which of the following nation was the runner-up in ICC ODI World Cup 2019? ये क्वेश्चन CPO में तो आया ही, CGL में भी आया, CHSL में भी आया। इस बार जो मार्च में हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन was seen. Which nation was the runner-up in the World Cup 2019? एंड इंडिया किस टीम से हारी थी इन द वर्ल्ड कप? सेमीफाइनल्स में इंडिया किस टीम से हारी थी? सुमित, सोनू, नितिन, संदीप। सिंपल क्वेश्चन है, विद अ सिंपल आंसर एंड मोस्ट ऑफ यू माइट नो इट। देवेश, सज्जन, क्विक, योगेश, देवेश, विकास। Option C, New Zealand, that is right. New Zealand was the runner-up. Winner was England. England का पहला वर्ल्ड कप था इस बार, यानी वो मतलब जीते थे। फर्स्ट वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड जीती है that was this time 2019 ICC ODI वर्ल्ड कप। एंड सेमीफाइनल्स में भी इंडिया जिससे हारी थी that was न्यूजीलैंड। दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे। What is known as the powerhouse of the cell? Now बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसके ऊपर तो आजकल मीम्स भी बनने लग गए हैं, so this must be the easiest question for you. किसे सेल का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, या what is also known as the power house of the cell? Yeah, it won hearts, Hitesh, that's right. Shivam, Krishna, Devanjan, Anand, Sudhir, Ashish, Swaraj, Vishwajit. Okay, so Ben Stokes को तो BBC का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है शायद। Now answer for this question, Akashi, Chintan and all those who are going with option D, that is right. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Endoplasmic reticulum अलग है। Those who went with nucleus, nucleus is not the powerhouse of the cell, it is a genetic house. वहाँ पे basically genetic material होता है nucleus में। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ दोज ऑर्गेनेल्स जिनका खुद का आरएनए होता है। खुद का आरएनए रखने वाले सिर्फ दो ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड तीसरा न्यूक्लियस है उसके बाद। नाउ व्हाट इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ अ सेल? किसे सेल का आत्महत्या बैग के रूप में जाना जाता है? इस आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी थे। नाउ सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे जाना जाता है, किसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं? मुकेश, सोनू, सिंपल क्वेश्चन है। दिलीप, सोनू, परमानिक, अनमोल, स्वराज। वेल वो तो तब पता चलेगा जब मैं when there will be no not my classes, तब पता लगेगा पावर हाउस कौन है। विश्वजीत, ओके, सो वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन ए।
Lysosome, that is right. Lysosomes are known as suicide bag of the cells. सुसाइड बैग्स क्यों? क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स एंड जब भी ये बर्स्ट हो जाता है तो दे ईट अप द होल सेल. जब सेल मर जाता है तो लाइसोसोम्स बर्स्ट और पूरे सेल को खा जाते हैं, या यू कैन से डाइजेस्ट कर लेते हैं. With which of the following world leaders Prime Minister Narendra Modi held a second informal summit and a delegation level talk in Mamallapuram, Tamil Nadu in October 2019? ममल्लापुरम निम्नलिखित में से किस विश्व के नेता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ममल्लापुरम में एक दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता आयोजित की? वारिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नॉट एट ऑल एन इशू. Amit, the session will end, I guess, we are close to ending, but आज थोड़ा जल्दी end हो सकता है. So by I guess 12:30 or maybe 20 we might end. Shubham, Vikram, Devanjan, Dilip. Okay, so we have answers for Xi Jinping. That is right. Xi Jinping के साथ second informal meeting मामल्लापुरम तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज की गई थी या हुई थी with the Prime Minister of India नरेंद्र मोदी. Now, which of the following Indian journalist was one of the recipients of 2019 रमन मगसेसे अवार्ड? या निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पत्रकार 2019 रमन मगसेसे पुरस्कार पाने वालों में से एक था? रमन मगसेसे अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ एशिया. एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है रमन मगसेसे अवार्ड. कौन से भारतीय पत्रकार को ये अवार्ड मिला था? संदीप, बजरंग, ईश्वर, कुमार, संजय. संदीप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. रमन मगसेसे अवार्ड के इंडियन जर्नलिस्ट विनर दैट वाज रवीश कुमार, ऑप्शन ए. रवीश कुमार जी को he was the Indian journalist जिसे 2019 रमन मगसेसे अवार्ड मिला. रमन मगसेसे अवार्ड एशिया का हाईएस्ट अवार्ड है, which is also known as Nobel Prize of Asia. As per the projection of Union Budget 1920, Indian economy is set to become what amount of $1 trillion economy in financial year 1920? केंद्रीय बजट 1920 के प्रक्षेपण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019-20 में कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है? और सिंस अब 2021 का बजट आ गया था तो उसके हिसाब से कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का टारगेट रखा गया है? 1920 में कितने ट्रिलियन डॉलर का टारगेट था और इस बार कितना है? कृष्णा, अमन, okay, so we have a few answers going with 5. Vishwajit, Anand, Yadav, Vivek. Okay, so we have answers for 5 and 3. Well, 2019-20 में $3 trillion इकोनॉमी था एंड 2020-21 के बजट में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है. तो 5 ट्रिलियन वाला जो है वो 2020-21 वाला बजट है. ये क्वेश्चन 2019-20 के बजट से है एंड उसमें इंडिया $3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इकोनॉमी बनने वाला था. सो अब जो क्वेश्चन आएगा अगर वो 2020-21 के बजट का आएगा तो इट्स गोइंग टू बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. During fertilization in living beings, a fusion of male and female gametes take place to form a cell called what? जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन की कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे क्या कहा जाता है?
व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो चुका होता है? दिनेश, नितिन, पायल, राहत, क्षत्रिय, सूर्या, ओवम. ओके, पायल से zygote, ध्रुव, Anshu. Okay, so we have a few answers now. Subhashri says zygote. Well, the answer is zygote. Sperm and ovum are the individual gametes. Ovum is female gamete, sperm is male gamete. इनका जो फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद द zygote is formed, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है. द सेल जब मर्जर हो जाता है या फ्यूजन हो जाता है उस टाइम पे इट बिकम्स अ zygote. एंड एम्ब्रियो जब वो zygote बड़ा हो जाता है फीटस इज एम्ब्रियो. सिंगल सेल पूछेंगे तो zygote, मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो. Which among the following is the third most populated country in Asia? निम्नलिखित में से कौन एशिया में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है? Which is the third most populated country in Asia? इसके अंदर सीपीओ के अंदर कुछ क्वेश्चंस नोबेल प्राइज से भी रिलेटेड थे, बट दे कुड नॉट बी ब्रॉट अप बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन इश्यूज. दिव्येंदु, मास टेस्टिंग शुरू हुई है, आई मीन रैपिड टेस्टिंग शुरू हुई है. केसेस आर इंक्रीजिंग एट सर्टेन एरियाज, बट चांसेस आर दैट इट इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड. सुमित, देवांजन, अर्नेजा, crude prices, price of crude oil can be negative. Yes, हुआ है. Can be क्या हुआ है? Price of crude oil became negative yesterday. Last closing stock was at -$40 approximately. तो नेगेटिव हुआ है. फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है. दैट्स राइट, पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि नेगेटिव प्राइस हुआ है क्रूड ऑयल का, लेकिन हुआ है. लास्ट yesterday the oil prices, the closing price was at negative. वेल सूर्या, इट इज बेसिकली कि इसीलिए दिस वाज द रीजन कि क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव ना हो, इसीलिए ओपेक जो है वो एक्सट्रैक्शन को कम करने के लिए प्रपोजल रख रहा था, या वो बोल रहा है. बट स्टिल अब इतनी अचानक से एक्सट्रैक्शन कम नहीं कर सकते हैं, बट दे आर रिड्यूसिंग इट बिकॉज डिमांड इज रिड्यूस्ड. नाउ coming to the third most populated country in Asia, it is Indonesia, option C. Yes, पहला चाइना, फिर इंडिया, फिर इंडोनेशिया. तो टॉप 3 में अगर मोस्ट पॉपुलेटेड देखते हैं, चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया इन एशिया. नेक्स्ट, whose invention led to development of a polio vaccine? पोलियो वैक्सीन के विकास का आविष्कार, वैक्सीन के विकास का आविष्कार किसने किया, किसके नेतृत्व में हुआ, या किसके नेतृत्व में ये विकास हुआ? Whose invention led to development of polio vaccine? No, Sandeep, it's not totally Muslim. It's not a fully Muslim country. Globalization has led to creation of minorities and majorities. तो कोई भी कंट्री कंप्लीटली एक रिलीजन से डोमिनेटेड हो, ऐसा बहुत रेयर सुनने को मिलेगा. सरिता, दिव्येंदु, संदीप. Okay, so we have answers coming up. Raj, चित्रा, आनंद. सो कंफ्यूजन चल रहा है जोनस सॉक में एंड रॉबर्ट वेलबर्ग. द आंसर इज जोनस सॉक. जोनस सॉक, ऑप्शन बी. हिज इन्वेंशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन. नाउ एज ऑफ नाउ एक वैक्सीन इंडिया तैयार कर रहा है, या CSIR ने उसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू किया है कोरोना वायरस के लिए. दैट इज डेड वैक्सीन. डेड वैक्सीन बनाने का प्रोसेस शुरू किया है CSIR ने. डेड वैक्सीन का क्या मतलब है कि कोरोना वायरस का वायरस स्ट्रेन लिया, उसके RNA से रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रिड्यूस कर दी या खत्म कर दी, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा,
और उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा लेकिन बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी एंड इससे जब दोबारा एक्चुअल कोरोना वायरस आएगा तो बॉडी नोज हाउ टू फाइट विद इट। ये होता है डेड वैक्सीन, जो अभी CSIR उस पर रिसर्च कर रहा है। He did not file a patent for that. As per the estimates of Union Budget 1920, how much investment is needed in railway infrastructure during 18 to 30? केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुमान के अनुसार 2018 से 30 के दौरान रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने निवेश की आवश्यकता थी? Yeah, hope it turns out to be successful. Will take time, but it सक्सेसफुल तो होगा, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बिकॉज न्यू वायरस है तो उसका RNA पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। प्लाज्मा थेरेपी अभी शुरू की है केरला के अंदर अलाउ किया गवर्नमेंट ने उसे करने के लिए ऑन ट्रायल बेसिस। Now the answer of this was 50 lakh crore and 2021 तक पूरी रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी पे रन होगी, ये भी प्रपोजल आया है। Well, LLB स्टूडेंट हो तो it will help you in creating the wider prospect. Yes. So advocate Chitra. Okay, that's why you have written ADV. Okay, so Chitra, knowledge vast करने के लिए definitely helpful. Rest, if you're preparing for any examination, helpful. Which of the following religious groups annually celebrates the Paryushan Parv for self-purification and uplift by adhering to the 10 universal virtues in practical life? Yes, rapid tests are genuine, Sandeep. निम्न में से कौन सा धार्मिक समूह प्रति वर्ष व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करते हुए आत्मनिर्भरता और उत्थान के लिए पुरुषन पर्व मनाता है? It's a festival. Wow. So we have people there as well. Well, the answer is right then. It is Jains. It is a festival of Jains Paryushan Parv for self-cleansing. Okay, so that's it for the day. Certain questions could not be brought up because of the translation issues. So now I shall be leaving you with this. Here are my Instagram, Telegram IDs for further updates on any classes of mine or videos of mine. इन सब की updates आपको Instagram पे मिल जाएंगी या Telegram पे. So Olive Board test series would be good if you are going for banking. Okay, so with this I should wind up the session. So that's the end from me. We'll hope to see you tomorrow with the same enthusiasm. Until then, goodbye. Take care. Have a great day ahead. And that's so nice to see that UPSC students are also there. I would love to see more UPSC students, जिससे फिर उनके लिए special courses निकल सके. Okay, so goodbye. Take care and have a great day ahead. Anoop, the timing is 11:30.